ایک آدمی کا 4 بیٹا, چاروں جاہل, ساری دولت جمع کیا, کسی بیٹے کو پڑھایا نہیں. موت کا وقت آیا, زارو قطار ہونے لگا تو بیٹے لوگ جمع ہو گئے, بابا کھانا کھانے جا. بولیے بیٹا ہمیں دولت کا میلان, سب کچھ کر لان بیٹا, لیکن آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائے. بیٹا قبر کے لیے کچھ نہیں کر پائے, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ صدقہ زکات دیا, نہ مدرسہ بنا پائے, نہ مسجد بنا پائے. بیٹا سونے کا ڈھیر صرف میں نے بنایا, نہ تم لوگوں کو پڑھائے. افسوس اس لیے ہے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا, اللہ کے یہاں کیا ہوگا, میں کیا جواب دوں گا. تو بیٹوں نے کہا کہ بابا کانا مت, ہمرا سے چھین. بولا تو سے یہ تک چھا, وہاں کی ہے تھی ٹھوکیا جو بنتا. بولے بیٹا بس ایک وصیت ہے, میری وصیت کو پوری کرو گے. بولے ابا بولیے وصیت کیا ہے. بولے بیٹا ہم جب مر جائیں نا تو کسی قرآن پڑھنے والے کو لا کر, حافظ قرآن کو لا کر قرآن پڑھا کر دعا کر دینا بیٹا, شاید اللہ قرآن کے صدقے میں, تلاوت کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف کر دے. تو بیٹوں نے اقرار کیا, ابا انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی وصیت پوری کریں گے. مرنے والا مر گیا. اب وہ سارے رشتہ دار لوگ آئے, جمع ہوئے, دفن کفن کر کے بیٹے لوگ گھر آئے. رات میں چاروں بیٹا بیٹھا, چاروں بیٹا ہاں. اچھا اس زمانے کی بات ہے جب قرآن پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے, بہت کم لوگ تھے. شروع اسلام کا زمانہ تھا, بہت کم لوگ پڑھنے قرآن جانتے تھے. تو چھوٹکا بیٹا بولی کہ بھیا کی کر لوتی ہو, کہاں سے لوتی حافظ صاحب ہوگا. تو بڑکا بیٹا بولی کہ سنے بابا مر لے گے, ٹینشن مت لے, وہ سمجھتے رہتے ہیں. کھیلا دیکھیے گا نا, جیسے ہی آنکھ بند ہوگی نا پھر کھیلا دیکھیے نا. آنکھ جب تک کھلی ہے سب ہے, آنکھ جب تک کھلی ہے سب ہے, جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں, سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن, اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن, جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے, کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں. بڑا بیٹا بولا کہ سنو ٹینشن دور کرو, ابا چلے گئے وہ سمجھتے رہیں گے, چنتا مت کرو, کہاں ملے گا حافظ قرآن ڈھونڈنے جائیں گے. چھوٹا بیٹا بولا کہ نہیں جہاں ملے وہاں سے ہم لائیں گے, اپنے باپ کی وصیت کو ہم پوری کریں گے. اب پورنیہ ضلع سے چلا گیا کٹیہار ضلع, دیکھا ایک سائل مانگنے والا گلی کوچے میں مانگ رہا تھا. ان سے بولا بابا ٹھہرو, بابا ایک سوال بتاؤ, آپ کی نظر میں کوئی قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن ہے؟ تو سائل نے بولا کہ بیٹا کیا بات ہے. وہ تو لڑکے نے کہا کہ میرے ابا مرتے وقت وصیت کیے تھے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی حافظ قرآن لا کر قرآن پڑھا کر دعا کروا دینا, تو اس لیے ہم نکلے ڈھونڈنے کے لیے. تو وہ سائل بولا, بابا فقیر بولا کہ بیٹا تور گھر کہاں چھو؟ بولے ہمار گھر چھا پورنیہ. تو پھر اس فقیر نے کہا کہ کہنا پورنیہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں مل لو؟ بولا مل لی دیا کٹیہار کی کرے لانا تمہیں. تو یہ سائل سوچا کہ رے واہ بڑا اچھا موقع ہے, جب وہاں کچھ کے نہیں چاہیے تو ہم میں کہنے بنی جو. تو بولے بیٹا پیسہ کتنا دیں پیسہ؟ بولے پیسہ کی چنتا نہیں, دولت بہت ہے, 1000 ٹکا دین. بولے بیٹا سنو تمہاری پریشانی دور ہو گئی, ہم پکا حافظ قرآن ہے, اب پکا جاہل چھیل لا کے چلا لے خوشی خوشی گھر, کھانا پینا کھیل کے بولے پڑھیں, بولے یہاں مت پڑھو, چلو قبرستان میں بیٹھی ہمارے بابا قبر میں پڑھیو. تاکہ بابا بھی سنتی گیا, پڑھا لکھا تو تھا نہیں.
किताब खोला, पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरवट पड़ी जी। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लगे है जी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो असली जो घर हमरा असली पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन की। चौथा गिली, वो भी एक जाहिल पकड़ी गन की। बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? टिकराज निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर छी, नजदीक नहीं छी, कम से कम 2 महीना लगतो। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा के जन्नत से बाहर मत छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बोला। तो पहला वाला पढ़ा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो देखा कि कोई शय है, उठाया तो देखा कि खोपड़ी है। क्या है बोलिए? अच्छा खोपड़ी जाने ना अपनारा? अरे खोपड़ी जानी हो, माथ हो तो आदमी का खोपड़ी है। तो पढ़ा लिखा आदमी था, मिट्टी उट्टी झाड़ा तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाबी कर बाकी कीजिए, चेक करे लगती कर बाकी कीजिए।
मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख के ताला लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा, रोजाना सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था कि अखन तो कुछ उभे नहीं बिली बन कर रखी थी। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। वो दिन में 2 मरतबा अलमारी चुपके से खोलता है, ताला लॉक करके, फिर चाबी अपने पॉकेट में रखता है। लागे ये कुछ गड़बड़ है, फुदकी बाप की रखल के से। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, डगरवा हटिया बाजार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोले तो सही, देखे तो सही ये अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोला, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। बोलियो ये जादू सीखी, हमरा भगावेली जादू सीखी, इधर जादू हमें खत्म कर दी। ली खोपड़ी डाली उखली में, कहाँ डाल के बोला? उखली जाने जाएगी, उखाड़ दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बना दिल, गढ़ाम फेंकी दिल। शाम को इसका शौहर आया डगरवा हाट से, चाबी ढूंढने लगा, बी बोली कि चाबी मिली थी, लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बी बोलती की छापे जा खोपड़ी, आज जादू से कहीं डालते। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही कि वो खोपड़ी का क्या हुआ। बीवी बोली हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया, वही तो जानना है। तो बीवी बोली को खुली में देके दे समाट भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलग रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हजरत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया, कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा कोई नहीं उठाना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी चली लियो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है, या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है। या अल्लाह
ان تمام ہزاروں لوگوں کے موجودگی میں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر۔ اتنا کہنا تھا، اتنا بولنا تھا، آنسوؤں سے، آنکھوں سے چند قطرے آنسوؤں کا گرنا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے لے بارش کے دے بارش، موسلا دھار بارش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے حیرت ہے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسے گی، ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں کوئی۔ تو رب کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ جس کی وجہ سے بن کر رکھا تھا اسی کے طوفیل میں بارش کو برسایا ہے۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے بن کر رکھا تھا انہی کے طوفیل برسایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا کون ہے تیرا وہ بندہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار اس کی جھلک دکھا دے۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا ہم اس کو رسوا نہیں کیے، آج تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے، ہم اسے رسوا کیسے کریں گے؟ وہ میرا اللہ کریم ہے، وہ میرا اللہ رحیم ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ گھر کے اندر میں دیکھیے باپ کا کہنا بیٹا نہ مانے، جوان بیٹا کما کر نہ لائے، کام نہ کرے تو باپ غصہ ہو جاتا ہے۔ باپ غصہ ہو کر اپنی بیوی سے کہتا ہے ایک دم خبردار اوپر کھانا بن گئی دین یا کھانا نہیں جی، بولتا کہ نہیں بولتا کچھ بولی بولے، لیکن ماں چھپا چھپا کر بیٹے کو کھانا کھلاتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا آنا نہیں چاہتا ہے، باپ نہیں چاہتا ہے کہ یہ لڑکا کیا کہتے ہیں ہم اس کو کھانا کھلائیں، ہم اس کو کپڑا پہنائیں۔ لیکن قربان جائیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، قربان جاؤ، ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ کیا میرا اللہ نے کبھی کھانا بن کیا؟ ارے بھائی بولو بن کیا؟ میرے اللہ نے کبھی لباس بن کیا؟ کبھی میٹھی نیند سے محروم کیا؟ اللہ کیا اپنی نعمتوں سے محروم کیا کبھی؟ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ رحمتوں پہ رحمتوں کا نزول کیے جا رہا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ اس لیے آؤ میرے بچوں، رب کے سامنے اپنے سارے سابقہ گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرو۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے بھائی، توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ تو بولو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایٹائی کو تھا 3 بار جو پڑھ لے گا، جو بول لے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اللہ سے جڑو، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر میں بساؤ، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر میں بساؤ، اس لیے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، موت قریب ہے۔ موت، ارے بولو نا، آج سلیگوڑی ایئرپورٹ اترا، باگڈوگرا ایئرپورٹ اترا، رات میں رانچی میں تھا، میں صبح 8:40 کی فلائٹ پکڑ کے کلکتہ پہنچا، کلکتہ سے 11:40 کی فلائٹ پکڑ کے باگڈوگرا اترا، تو دیکھا ایک جگہ کافی بھیڑ تھی۔ ایک موٹر سائیکل پہ 3 نوجوان آ رہا تھا، اور اتنا خوبصورت سب نوجوان تھا، تو گاڑی رک گئی، بھیڑ تھی، جام لگ گیا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو بھائی اتر کر دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی کہ دیکھے تو صحیح ایکسیڈنٹ کیسا ہوا، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ 2 لڑکے کی حالت ایسی تھی وہ یوں سمجھ لے ختم ہو گیا۔ موبائل ادھر بکھڑا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ ادھر بکھڑا پڑا ہوا ہے، کسی کا جسم پہ کپڑا نہیں ہے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے کیا؟ یہ نوجوان لوگ گھر سے سوچ کر نکلا تھا کہ ہم گھر لوٹ نہیں پائیں گے، ہم گھر لوٹ کر نہیں پائیں گے، ہم راستے ہی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں گے؟ کسی نے سوچا تھا؟ آج تمہیں فرصت نہیں ہے، موبائلوں سے فرصت نہیں ہے، گانوں سے تمہیں فرصت نہیں ہے، میوزک سے تمہیں فرصت نہیں ہے، واٹس ایپ سے تمہیں فرصت نہیں ہے، فیس بک سے تمہیں فرصت نہیں ہے، تو قرآن پڑھو گے کب؟ قرآن پڑھو گے کب؟ اجے دیکھیے گا جب بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں تو جلسہ سجایا جاتا ہے، اس بچے کی دستار بندی ہوتی ہے، دیکھے ہیں؟ ارے بولو نہیں ہو یہ دھکا ماری بولا بھلے، مارا دھکا بول لے، مارا دھکا بول لے۔ لڑکا گیا سسرال،
सास पूछल कि मैं अच्छा हूँ ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छी, ये लड़का बौका छी। एगो समधीन फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की? बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर छी। बोले कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाई लगे ला। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है जी, अब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी मैं अच्छा ठीक? बोली हाँ। बोला हमार बेटी छे ठीक ना? तो घबरा गेली कि हमर बेटी की बोली डॉक्टर देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धोला? हाँ। खाना खेला? ना। कुछ हमू बोलो, कुछ तो हो बोला, खाली हमें बोलो। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो, आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं वकील साहब के सर पे? अब प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे। लेकिन एक हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा, 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में, मेरा अल्लाह मेरा रब 30 नेकी अता फरमाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। हम तो कहते कम से कम अपने बच्चे को मौना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुगैर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4 साल 5 साल पहले की बात है। 50,000 का मजमा था। आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम। तो दुआ कौन करेगा? फकीर, फकीर कहाँ जी अखनी उगरा फुर्सते नहीं है। अब साइल है कहाँ? तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे, हे कौन चीज कौन दिन जियो, बोले 10वां जी रो,
20वां 40वां लाया फकीर साहब को पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा, तोरा की मालूम? ते तो पढ़ लो कि नहीं जा, बात सही गलत है। अरे ते पढ़ लो रहा, बात तक नहीं पकड़वा हो। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? আলহামদুলিল্লাহ। আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করব। আমি ওনার জন্য দশটা को दुआ करब। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो क्या बात है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नजर पड़ गई कि एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए इतना खून जांच करे था नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर को अल्लाह यहाँ भेज दी जा झमेले खत्म हो गए। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हज़ार रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान कि मदरसे के अंदर में बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अजमत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपए हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। तो इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियां पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये डगरवा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लौकानी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। ये वो इलाका है कि एक आदमी चाहले तो लाखों रुपए इसमें चंदा दे सकता है। एक आदमी अगर चाहले अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह मैं 1 लाख आपसे नहीं लूँगा मेरे भाई, हम 1 लाख आपसे नहीं मांगेंगे। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। 5 आदमी तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा और एक खाने जेडे दुआ होबे कबूल होबे। अल्लाह कुरान में कहता है, एक भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह, ए देखिए, वाह अगली हो
اچھا آئے گا انشاءاللہ، آئے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تیار ہوگا۔ دیکھیے یہ جو تیار ہوگا اللہ تیار کروائے گا، اللہ میرا اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ جس کے پیسے کو قبول کرے گا، جس کے پیسے کو چنے گا، جس کے پیسے کو پسند کر لے گا ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ ہے بھائی پہلے فہرست میں جس کا نام آ جائے 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য দশটে দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। है प्रथम जन कोई ऐसा नौजवान माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा ये भी सुविधा है कि फोन पे का जमाना है, फोन पे कर दीजिए। अब्दुल रकीब साहब जो है 10,000 है दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर। है मुखिया अब्दुल रकीब साहब 10,000 दिए हैं। माशाल्लाह देखिए ये अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह हमारे मुखिया साहब की इस दान को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान व अमल में खिदमत में खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। है सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। मुखिया अब्दुल रकीब साहब के तरह कोई सरपंच साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई वार्ड पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई है वह इंजीनियर हो, कोई वकील हो, इंशाल्लाह 5,000 टका हम 5,000 मांगेंगे, आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको हैसियत दिया है, अल्लाह आपको उस लायक बनाया है तो इंशाल्लाह आप वहाँ तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई दूसरे नंबर पे 5,000 वाला, दूसरे नंबर पे 5,000 वाला कोई नौजवान। अच्छा देखिएगा यहाँ पेटीएम का सुविधा है, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। खाली देने के लिए आप तैयार होइए, लेने के लिए यहाँ तैयार लेते तो आप तैयार हुआ तब नहीं ले वो। हाँ है कोई पहला नौजवान है 5,000 টাকা দিতে পারেন ইনশাল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, एक आदमी तो चाहिए भाई मजमे के अंदर में। यह मुखिया हमारे अब्दुल रकीब साहब दामद बरकातहुम ने शुरुआत करी है। हसीबुर रहमान साहब डगरबाग के 5,000 रुपये। नारे तकबीर। है डगरवा के हमारे जनाब भाई हसीबुर रहमान साहब दामद बरकातहुम ने 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। अल्लाह हमारे हसीबुर रहमान भाई के इस दान को कबूल अता फरमा ले, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान व अमल में खिदमत में खलियान में बरकत दे, अल्लाह हसीबुर रहमान साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई नौजवान माशाअल्लाह, अरे अब्दुल रकीब साहब की तरह, हसीबुर रहमान साहब की तरह तीसरा कोई नौजवान, खुश नसीब नौजवान मजमे में से कोई खड़े हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। ए नौजवानों एक बात याद रखना, आज यहाँ पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो, खुदा न खास्ता कल के अगर
صاحب درہا ہے نعرے تکبیر عالم بعمل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قربان صاحب مد ذلہ العالی دامت برکاتہم درہا کے رہنے والے ہیں، عالم بعمل ہیں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت نے ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ 5,000 روپے تعاون کری۔ اللہ ہمارے حضرت کی اس دان کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں، بال بچوں کی عمر میں، علم میں یا اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے بھی والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے دے الحمدللہ۔ কত জন হলো? 3 জন হয়ে গেল। হ্যাঁ, আল্লাহ নবীর কটা ইয়ার? 4টে ইয়ার। चौथे नंबर पे इंशाल्लाह है कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। है कोई अल्लाह का शेर चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। ए भाई, चाय वाले से गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी देर बाबू बर्दाश्त कर लो, तुम्हारे लिए भी दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी चाय को मीठी कर दे। है कोई भाई चौथे नंबर पे? भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए इंशाल्लाह। अरे पिंडाल में से कोई ऐसा नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जा। है कोई नौजवान है ऐसा, कोई ताजिर है ऐसा, कोई किसान है ऐसा, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई लाल अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह बेटियों के मदरसे के अंदर में हम 5,000 रुपये ताउन करेंगे। आप दुआ कर दें, ये हज़ारों लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, ये दुआ बड़ी सस्ती है, ये 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, मान के पास में पैसा नहीं है, घर में कोई हादसा हो जाए, कोई सीरियस हो गया, पूर्णिया ले जाने की नौबत आ गई, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, तो 25-30 हज़ार रुपये तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। नारे तकबीर। ए जनाब भाई रुस्तम साहब की करमानी के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे रुस्तम बाबू के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? हाथेर उंगली कटा, दिन और रात मिले नमाज कोटा, 5टे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा, उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा दुआ ये भी कर दूंगा कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। 5 आदमी 5वें नंबर पे एक 5,000 रुपये देने वाला खुश नसीब नौजवान होगा जो अपनी माँ के नए सालो सवाब की नीयत से, अपने बाप के सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये दान करेगा, सदका करेगा। अल्लाह इसका जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई खुश नसीब नौजवान? है भाई, एक आदमी है, 5वें नंबर पे इंशाल्लाह, उसके लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। है कोई नौजवान? 5,000 रुपये सदका करो इंशाल्लाह, दुआ हो। मोहम्मद बदिउज़्ज़मा कुवैत से 5,000 रुपये। नारे तकबीर। जनाब बाबू बदिउज़्ज़मा साहब जो कुवैत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 रुपये उन्होंने ताउन किया। अल्लाह हमारे बदिउज़्ज़मा बाबू के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अजी सौदा को सस्ता करूं, बड़ा सस्ता सौदा है। हम चाहते कि इसमें कम से कम 10 आदमी जुड़िए। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं ज़रा आइए तो देखना चाहता हूँ मैं इंशाल्लाह। 1,000 रुपया, 500 रुपया, कोई बड़ी रकम नहीं है। पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में? अरे बोलो ना भाई, बखील के कई क्वालिटी? बखील जाने ना? अरे बखील जानिए, बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील कितना बिली? कंजार, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अगर वो नमाजी हो? कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल अगर वो रोज़ादार हो? कहा कि नहीं जाएगा। कि या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ने वाला हो?
کہ نہیں جائے گا. جو بخیل ہے وہ جنت سے دور ہے, اللہ سے دور ہے, جہنم کے قریب ہے. اور جو سخی ہے وہ اللہ سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, جہنم سے دور ہے. اس لیے میرا اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے. نوجوانوں, اللہ دولت دے, اللہ مال دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, دین کے پیچھے خرچ کرو. میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے, میرے راستے میں خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے, ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں. ماشاءاللہ محمد مفیل, یہ دیکھیے ایک بچہ آیا, یہ دوسرا بچہ بھی آ رہا ہے. 1500 روپے لے کر آؤ, جتنا جلدی ہو سکے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہو رہے, جلدی جلدی آئیے. اچھا, ہماری ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں آئی ہیں. میری ماں بہنوں کے پنڈال میں بھائی رضاکار لوگ جو ہیں چادر رومال لے کر گھوم جائیں. میری ماں بہنوں, دل کھول کر تعاون کرنا. تاریخ اسلام گواہ ہے, اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے کری ہے. آپ اس کی بیٹی ہو, آج دل کھول کر اپنی بیٹیوں کے مدرسے میں دان کرنا, اپنے ماں کے نام پر, اپنے باپ کے نام پر, اپنی اولادوں کے نام پر, اپنے شوہر کے نام پر. اے بھائی آ جاؤ بھائی, 1500 روپے لے کر آ جاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں؟ اچھا, 1500 والے بھی آئیے, 100 200 300 400 والے بھی آئیے. آپ کہاں بیٹھے رہیے گا, آپ کیا کسی سے پیچھے تھوڑے ہیں؟ 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا, فون پے, پے ٹی ایم, گوگل پے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. حضرت کے موبائل پہ کر دیجیے. نوجوانوں, ابھی تو موبائل میں یہ سویدھا فیسلٹی ہے, تمہارے پاس پیسہ بھی ہے انشاءاللہ. موقع ہے, 1500 روپے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے, اکاؤنٹ خالی نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. بخیلی چھوڑو, کنجوسی چھوڑو, بیٹیوں کا مدرسہ ہے, اس مدرسے میں تعاون کرو, اور میرا اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. بھائی جلدی جلدی آؤ نا بھائی انشاءاللہ. 100 200 300 400 500 1000 والے آئے, جلدی جلدی آئیے انشاءاللہ. کون سی بڑی رقم مانگ لی آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے؟ بتائیے, 100 روپے بھی پاکٹ میں نہیں ہے, 100 روپے بھی پاکٹ میں نہیں ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ 100 روپے ہم مدرسے میں دے دیں گے میرا پیسہ کم ہو جائے گا؟ اے دیکھیے نوجوان آ رہا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, جو دینے والا ہے وہ دے کر رہے گا, اور جو نہیں دینے والا ہے لاکھ تقریر سنا دیجئے الحمدللہ وہ نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ اس کے پیسے کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہارا پیسہ مدرسے میں لگے, تمہارا پیسہ مسجد میں لگے. اللہ جس پیسے کو قبول کرے گا ٹھیک وہ پیسہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے گا. تو آئیے نا, جلدی جلدی آئیے نا. 100 200 300 400 500 1000 2000 دینے والے کتنے لوگ اس جلسے کے اندر میں ہے؟ اگر ہے تو دے دیجئے, نہیں تو اللہ معاف کرے گا. یہ دیکھیے میرا تیسرا بھائی آ گیا. ماشاءاللہ, کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے بھائی, ماسٹر عمران صاحب چاکدہ کے رہنے والے ہیں. 1000 روپے تعاون. ماشاءاللہ. ممتاز صاحب چاکدہ کے رہنے والے ہیں, 500 روپے تعاون کرے ہیں. اللہ ان دونوں کے دان کو قبول فرمائے. بھائی جلدی جلدی آؤ نا بھائی. آپ کتنی تقریر آپ کو سنائے, بتائیے دینے کے بارے میں. کیا آپ کے پاکٹ میں 100 روپیہ 200 روپیہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا, کوئی دقت نہیں ہے. آپ بیٹھے رہیے اپنی جگہ. اگر ہے تو دے دیجیے, اگر رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے, اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے. بخیل جنت میں نہیں جا سکتا ہے. آؤ, اللہ نے دیا ہے مال, اس مدرسے میں, بیٹیوں کا مدرسے میں انشاءاللہ تعاون کریں. مدرسے کا آپ کا اس سے 100 200 500 روپیہ سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن مدرسے کا بھلا ہو جائے گا. جلدی جلدی آئیے نا انشاءاللہ. دیتے جائیے, اپنی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھتے جائیے. ابھی میرے بعد کیا کہتے ہیں کہ چترویدی صاحب کی تقریر ہوگی انشاءاللہ, دعا کر کے جائیں گے یہاں سے. جلدی جلدی آئیے انشاءاللہ. کیا نام بابو؟ ماشاءاللہ. یہ سلمان صاحب عرف پپو الحمدللہ. یہ نوجوان نے 500 روپے تعاون کر. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. واہ بھائی واہ, یہ دیکھیے جذبہ اٹھا ہے. یہ ڈگروا کی سرزمین ہے, یہ لوکانی کی سرزمین ہے الحمدللہ. یہاں کا نوجوان بڑا سخی ہے, یہ علاقہ سخیوں کا ہے الحمدللہ. یہ دیکھیے لوگ اٹھیں اپنی اپنی جگہ سے. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, ہے اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی جلدی جلدی آئیے بھائی. بھائی پیچھے والوں کو بھی آنے کا موقع دیجیے, راستہ دے دیجیے گا. وہ پیچھے والے آ رہے ہیں بھائی. 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 دینے والے آ جائیے, اپنے ہاتھوں سے دے دیجیے تاکہ یہ ہاتھ بھی گواہ بن جائے. اللہ جب قیامت کے دن ہاتھ سے پوچھے گا تاکہ یہ ہاتھ کہے کہ مولا تیرے محبوب کا مدرسہ میں, تیرے راستے میں انہوں نے مجھ سے ہی